Good afternoon, students. So we are going to revise our chapter 1, crop production and management. Crop production and management. So we are going to discuss some of the important points. So first is crop. Crop किसे कहते हैं? Crop when the same kind of plants are grown in the field on a large scale to obtain food like cereals, pulses, vegetable and fruits are called a crop. अगर कोई एक ही तरह की फसल ग्रो की जाती है फील्ड में टू अ लार्ज स्केल ऑन अ लार्ज स्केल पर, ठीक है, और टू ऑब्टेन द फूड दैट इज़ या तो दाल हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, सीरियल्स हो, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे क्रॉप. जैसे कि फॉर एग्जांपल इन दिस पिक्चर वी आर सीइंग कि दीज आर द wheat crops, ठीक है, wheat crop grow in the field. Next is there are two types of crops are there, kharif crop and rabi crop. It's a very important. Kharif crops are the crops which are grown in the rainy season and can be harvested in September, okay, September or October. So एग्जाम्पल आर द पैडी, मेज, मिलेट, सोयाबीन. अब पैडी जो क्रॉप है वो ग्रो की जा रही है ना. नेक्स्ट इज हमारा राबी क्रॉप. राबी क्रॉप आर दोज क्रॉप विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, दैट इज एंड हार्वेस्टेड इन द मार्च और अप्रैल. तो कौन सी होती है फसल ऐसी जो हम विंटर में उगाते हैं और हम अप्रैल में काटते हैं? यस, वीट. सो एग्जाम्पल्स आर wheat, peas, mustard. These are some of the example. Next है कि हमने crop तो उगाई, but agriculture practices किसे कहते हैं? The various tasks performed by a farmer to produce a good crop. जो भी टास्क होते हैं, जो भी वर्क होते हैं एक अच्छी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, so these all the practices is called the agriculture practices. And in this practices it includes the preparation of soil, sowing, adding manure and fertilization, irrigation, removal of weeds, harvesting and storage of food grains. So first is preparation of soil. So before growing the crop we have to prepare our soil and we have to plow it by plowing, labeling and manuring. यानी कि उसे प्लोइंग करी जाती है, यानी कि जोता जाता है. तो प्लोइंग can be made by the bullocks also or it can be made by using the tractor. So after plowing क्यों की जाती है? So that the loose soil allows the plants roots to penetrate freely, आराम से उसके अंदर freely grow कर सकें, जिससे कि वो breathing easily कर सकें, ठीक है. जो भी worms और microbes होते हैं वो ऊपर आ जाएं, जिससे कि और भी turning और loosening भी करते रहें वो जो microbes होते हैं. इसके अलावा जो प्लोइंग करने से क्या होता है, जो वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है. सो इन दिस वे वी हैव टू प्लोइंग द फील्ड्स. इट्स अ वेरी फर्स्ट प्रैक्टिस. नेक्स्ट इज लेबलिंग. लेबलिंग का मतलब अब उसको लेबलिंग करना है, ठीक है. कहीं ज़्यादा, कहीं गड्ढा है तो कहीं कम है, तो इसको वी हैव टू लेबल इट. एंड आफ्टर इट मैन्योरिंग. So we have to add manure in it, ठीक है. So next practice is sowing. After plowing, next is sowing. Sowing क्या होता है? The process of scattering seed or putting the seeds in the ground. यानी कि बीजों को बोना. इसका मतलब स्कैटरिंग करना फील्ड्स में या फिर बीजों को डालना, ठीक है. So it can be done by the two methods, that is by the hands and by the seed drill. By the hand we can say broadcasting. The process is called a broadcasting, in which we grow the seed by our hands and we sow the seed by a seed. It's a type of, you can say, equipment, seed drill. इसमें एक फनल शेप होती है और एक आयरन की ट्यूब होती है और इससे हम बीजों को रिलीज़ कर देते हैं. It is a picture of seed drill like this, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा what precaution should we take for sowing the seeds. So seed should be sown at the right depth in the soil. ना तो ज़्यादा अंदर गहरा हो ना ज़्यादा ऊपर हो. अगर ऊपर होगा
तो भी है ना इट इज़ ईटन बाय द इंसेक्ट्स, और जब ज़्यादा गहरा होगा तो द कैन नॉट द ब्रीथ प्रॉपरली. सो सेकेंड पॉइंट इज द शीट शुड बी सोन एट राइट इंटरवल और स्पेसिंग. राइट इंटरवल और स्पेसिंग का मतलब उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होना चाहिए, क्योंकि ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या होगा, ओवर क्राउडिंग की वजह से उनको अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट है द शीट शुड नॉट बी शोन इन अ ड्राई सॉइल. ज़्यादा सख्त मिट्टी ना हो. ठीक है. बिकॉज दे मे नॉट जर्मिनेट एट ऑल. एंड द सीड शुड नॉट बी सोन इन अ हाईली वेट सॉइल. ज़्यादा गीली मिट्टी में भी नहीं होना चाहिए. हाईली वेट सॉइल में क्या होगा, द सॉइल सरफेस बिकम्स हार्ड, एंड बिकॉज ऑफ दिस हार्ड surface of L, the germinating plumule will be unable to come out of the ground, and the seeds are not able to respire properly due to lack of air. क्योंकि पानी बढ़ जाएगा, एयर की क्या होगी, कमी हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट इज transplanting. It's an important point. Transplanting means the process of transferring a seedling from the nursery to the main field. जो हम छोटे छोटे जो पौध तैयार करते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, सैपलिंग्स जो होती हैं, उनको ग्रो करने के प्रोसेस को ही ट्रांसफ़र करते हैं. पहले नर्सरी में उगाए जाते हैं, ग्रो करे जाते हैं, फिर उनको ही वहाँ से निकाल करके हम फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसप्लांटिंग. फॉर एग्जाम्पल अ पैडी इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ क्रॉप. देखिए पैडी सीडलिंग्स हैं, इट इज़ बीइंग ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड्स. Next topic is adding manure and fertilizer. So manure, what is manure? Manure is a natural substance obtained by the decomposition of animal waste like cow dung, human waste and plant residues, which supply essential elements and humus to the soil and make it more fertile. So manure क्या है, मैन्योर किससे बना होता है, नेचुरल सब्सटेंस है, बिकॉज ये काउ डंग और ह्यूमन वेस्ट से मिलकर के बना होता है. प्लांट के रेसिड्यू जो बच जाते हैं, प्लांट सड़ गल जाते हैं प्लांट्स, उनसे मिलकर के ये ह्यूमस यानी कि मैन्योर तैयार किया जाता है, विच इज़ मोर फर्टाइल एंड मेक्स द सॉइल फर्टाइल. नेक्स्ट है हमारे केमिकल फर्टिलाइजर. क्योंकि मैन्योर क्या है, मैन्योर के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते. कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स अगर हमें चाहिए होता है तो हमको फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है. ठीक है. फर्टिलाइज़र क्या है, फर्टिलाइज़र इज़ अ केमिकल और अ सॉल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स. कौन कौन से होते हैं इसमें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. इसीलिए वी कैन से इट NPK. बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ वेरी हार्मफुल, बिकॉज क्या होगा, केमिकल जो होते हैं वो सॉइल को क्या होते हैं, लेस फर्टाइल बना देते हैं. ज़्यादा फर्टाइल यूज़ करेंगे, फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो सॉइल को एसिडिक बन जाएगा. ठीक है ना, या तो फिर अल्कलाइन बन जाएगी ज़्यादा. तो और इसकी वजह से क्या होगी, लेस फर्टाइल बचेगी. और एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कॉज वाटर पोल्यूशन ऑल्सो. पानी के अंदर बह के चला जाता है तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है, जिससे कि जितने भी वाटर एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, इट इज़ वेरी हार्मफुल टू द वाटर एनिमल्स एंड दे बिकम डाइड. Next is also important term, difference between the manures and the fertilizers. A manure is a natural substance obtained by the decomposition of animal waste like cow dung, और इनसे बना होता है. फर्टिलाइज़र एक केमिकल कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इट इज़ लाइक अ सॉल्ट. A manure is not a very rich in essential plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. ये ज़्यादा रिच नहीं होती, क्योंकि जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमको किस में मिल जाता है, फर्टिलाइजर्स में. मैन्योर क्या होता है, मैन्योर में बहुत सारा लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि ह्यूमस प्रोवाइड करा सकता है सॉइल को, विच इज़ वेरी फर्टाइल. एंड बट फर्टिलाइजर्स के अंदर ह्यूमस नहीं होता. अच्छा ह्यूमस क्या होता है ये बताइए. ह्यूमस इज़ अ डेड एंड डिकेइंग मैटर. ठीक है. अब मैन्योर जो होता है वो एब्जॉर्ब स्लोली होता है, क्योंकि ये पानी के अंदर तो सॉल्युबल नहीं होता, बट फर्टिलाइज़र कैन बी ईजिली सॉल्युबल इन द वाटर, सो इट कैन ईजिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स. मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है, बट ये फर्टिलाइजर्स है वो फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है. और क्यों डाला जाता है, देखिए खेतों में क्यों डाला जाता है, बिकॉज इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. आराम से वाटर
आराम से ये पकड़ पाता है जो प्लांट्स हैं, सॉइल जो है। दूसरा, मैन्योर्स मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। नेक्स्ट इज मैन्योर इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल। माइक्रोब्स जो हैं वो मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से टर्निंग एंड लूजनिंग का जो काम है वो माइक्रोब्स ही कर देते हैं, सो डैट द सॉइल ब्रीथ ईजिली। नेक्स्ट इज मैन्योर इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्यों करी जाती है बेटा? देखो, क्रॉप रोटेशन इसलिए की जाती है, पहले सोचिए कि व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन। द प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, लेग्यूमिनस क्रॉप एंड नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप, आर ग्रोन अल्टरनेटली इन द सेम फील्ड और सॉइल इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। यानी कि द प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, पहले हमने अपने ना फील्ड में लेग्यूमिनस क्रॉप उगा ली, फिर अगले साल नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप, फिर उसको काट करके लेग्यूमिनस क्रॉप, फिर उसको काट के नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप, जिससे क्या है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है मेंटेन रहती है, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसी के अंदर अवेलेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने लेग्यूमिनस क्रॉप उगा ली है तो नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी है वो सॉइल के अंदर पूरी तरह से होगी। अब हम नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप उगा सकते हैं क्योंकि सॉइल के अंदर तो हमें नाइट्रोजन मिल ही जाएगा। अब जब नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप उगा ली, फिर से सॉइल के अंदर है ना नाइट्रोजन की कमी हो गई, तो हमने फिर से लेग्यूमिनस क्रॉप उगा ली। तो इस तरह से क्या है, क्रॉप रोटेशन चलता रहता है। ठीक बेटा। नेक्स्ट है इरीगेशन। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ क्रॉप प्लांट इन द फील्ड इज़ कॉल्ड इरीगेशन। अब इरीगेशन क्यों ज़रूरी है? सीधी सी बात है, पानी की वजह से सॉइल क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है। इरिगेशन अगर होता है तो ये जर्मिनेशन, सीड को आराम से जर्मिनेट हो जाए क्योंकि उसको मॉइस्चर मिल जाता है, बिकॉज सीड कैन नॉट ग्रो इन द ड्राई सॉइल। दूसरा, अगर मिट्टी मॉइस्चराइजर होगी, यानी कि मॉइस्चर इसमें प्रॉपर होगा, तो क्या है, हेल्दी क्रॉप होगी, तो फूड की यील्डिंग है वो भी हाई हो जाएगी। ठीक है बेटा। इसके अलावा इरिगेशन की वजह से ही जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब इजीली, प्लांट्स कैन इजीली एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर सप्लाई टू द क्रॉप्स ड्यूरिंग द इरिगेशन प्रोटेक्ट द क्रॉप प्लांट फ्रॉम द हॉट एयर करंट एज वेल एज फ्रॉस्ट। आपको पता है जब ज़्यादा है ना सर्दी होती है तब पौधों को पानी इसलिए डाला जाता है जो उसके ऊपर वो जो बर्फ़ जमी है या फिर जो उसके ऊपर कोहरा जमा है वो सब हट जाए। पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं ना ऑटम, उसके बाद ऑटम सीज़न आ जाता है जब पत्तियाँ टूटने लग जाती हैं, तो सर्दियों की वजह से ज़्यादा हवा चलती है तो पानी डालेंगे तो उससे कम हो जाएगी ये चांसेस। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक इरिगेशन में भी क्या है, अलग अलग नेचर ऑफ द क्रॉप देखना पड़ता है। नेचर ऑफ द क्रॉप का मतलब जैसे कि पैडी क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए होता है इन कंपैरिजन टू द कॉटन क्रॉप। नेचर ऑफ द सॉइल देखना पड़ता है कि सैंडी सॉइल है कि क्लेई सॉइल है। क्लेई सॉइल में इरिगेशन कम होती है और सैंडी सॉइल में ज़्यादा हो जाती है। सीज़न देखने पड़ते हैं कि गर्मी चल रही है कि सर्दियाँ चल रही हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सो ट्रेडिशनल मेथड, पहले तो इतने सारे सोर्सेज थे, मोट था, चेन पम्प था, ढेकली था, इस तरह से देखिए वेल, ढेकली, राहत, हट और नाउ द ट्यूबवेल। और मॉडर्न मेथड्स और कौन से होते हैं, स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इन स्प्रिंकल सिस्टम व्हाट वी हैव डन, स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, मेन पाइपलाइन जो होती है वो फील्ड में डाल दी जाती है और पेंडिकुलर पाइप जिसके अंदर नोज़ल फिट होती है वो ज्वाइन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इस तरह से पानी पूरे फील्ड में जाता है। ठीक है बेटा। सो इट्स अ स्प्रिंकल सिस्टम ऑफ इरिगेशन। नाउ इज़ अ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, वो छोटे छोटे नैरो पाइप्स और ट्यूब्स जो हैं वो स्मॉल फील्ड के अंदर होल्स कर करके डाल दिए जाते हैं। ठीक है। और इससे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप जो होती है, बिल्कुल जहाँ पर रूट्स होती हैं प्लांट की वहीं पे ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रिप सिस्टम के थ्रू वाटर जाता रहता है। और ये किस में अच्छा होता है, इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, ट्रीज एंड गार्डन्स। ठीक है बेटा। अब हमने पानी भी डाल दिया फसल के अंदर, अब हमें क्या है, रिमूविंग द वीड्स, वी हैव टू रिमूव द वीड्स। तो व्हाट आर द वीड्स, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल जावी, घास, चौलाई, बथुआ, ये सब जो क्या है अनवांटेड प्लांट होते हैं, दे कैन
grown with the main crop field. So we have to remove it. रिमूवल ऑफ वीड्स बाय पुलिंग देम आउट विद द हैंड, हाथ से करते हैं या फिर खुरपे से हम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज बाय यूजिंग अ केमिकल कॉल्ड द वीडीसाइड्स. सो वीडीसाइड्स क्या है? वीडीसाइड्स आर द केमिकल विच आर यूज टू किल द वीड्स. देखिए इधर से, देखिए ये देखो, ये वीडीसाइड्स ये खुरपे से कर रहे हैं और ये हाथ से मैनुअली दे पुल्ड आउट द वीड्स. नेक्स्ट इज हमारी फसल भी तैयार हो गई. अब हमें हार्वेस्टिंग के प्रोसेस आता है. हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं? कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द क्रॉप्स, यानी कि फसलों को काटना और उनको इकट्ठा करना. अब फसलों को काटा जाता है सिक्कल के थ्रू. अब सिक्कल के थ्रू तो ये तो मैनुअली हो गया. उसके बाद सिक्कल के थ्रू काटने के बाद क्या होता है? अब तो क्या होता है, हार्वेस्टर्स होते हैं जो कि है ना, हार्वेस्टिंग मोटराइज मशीन होती हैं. हार्वेस्टर जिन्हें कहते हैं वो आराम से वो काट देते हैं. काटने के बाद फसल कट के तैयार हो गई. अब हमको उसको क्या करना है? वी हैव टू बीट इट, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रैशिंग. द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड अ थ्रैशिंग. इसको हम बोलते हैं थ्रैशिंग. ठीक. थ्रैशिंग के बाद आता है उसके अंदर से फिर विनोइंग शुरू करते हैं, क्योंकि वी हैव टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द chaff एंड हे with the help of a wind, and this process is called a winnowing. ठीक है. विनोइंग के बाद देखिए ये एक पिक्चर है कंबाइन की. इसमें कंबाइन में क्या, हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों चीज़ है, यानी कि काटता भी है और जो हे है, हे का मतलब जो भूसा वगैरह जो है वो अलग कर देता है. ठीक है. सो अ कंबाइन इज़ अ ह्यूज मशीन विच कट द स्टैंडिंग सीरियल क्रॉप in the field, thrashes it and separate the chaff from the grain in one operation. एक ही बार में ये क्या कर देता है, गेहूँ अलग करके, फसल अलग करके, और उसका जो भूस है वो अलग कर देता है. नेक्स्ट इज द प्रोसेस आफ्टर हार्वेस्टिंग, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स विच कैन बी मेंटेन प्रॉपरली. देखिए सबसे पहले जो भी हम फसल करें उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, वो पनपने लगते हैं. सो वी हैव टू, पहले तो उन्हें धूप में अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए. फिर हमको एक गनी बैग्स हैं उनमें उनको क्या करना चाहिए, स्टोर कर लेना चाहिए. जितनी भी फार्मर्स हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में जब है ना गेहूँ वगैरह होते हैं, तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो ग्रेन्स किसानों से लेते हैं लार्ज स्केल में, और बड़े बड़े बिग गोडाउंस में वो सब के सब कैरी कर लेते हैं, और पूरे साल यहीं से ही पूरी कंट्री में अनाज जाता रहता है. देखिए एक ग्रेन सिलोज भी होती है फॉर स्टोरिंग द फूड ग्रेन्स. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड फ्रॉम द एनिमल्स. देखिए फूड फ्रॉम द एनिमल्स, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स भी होते हैं. Milk yielding animals are those organisms or those animals like which gives milk, like cow, buffalo, goat, ये सब होते हैं. ठीक. एंड मीट एंड एग यील्डिंग कौन से होते हैं, चिकन, हैन, डक, ये सब होते हैं. एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं, हाँ, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. इनको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, यानी कि वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स की फीडिंग और ब्रीडिंग करते हैं, उनकी हेल्थ का ठीक से ध्यान रखते हैं, टेक केयर करते हैं. हाँ. सो प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल इज़ देयर इन द एनिमल हस्बेंड्री, प्रॉपर शेल्टर ऑफ एनिमल्स, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एनिमल डिजीज एंड प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स. यानी कि पशुपालन जिसे कहते हैं, मेन है पशुपालन. ठीक है. अब नेक्स्ट है फिश एज अ फूड. As we know कि fish is highly nutritious and highly digestible food. It is very rich in vitamin A and vitamin D. So fish is a very important source of animal food. So बेटा this is all about the lesson. अब आपके जो एग्ज़ाम में है वो आपके क्या आएंगे, MCQs, very short answers. MCQs आपके 5 आएंगे, then very short answers 7 आएंगे. Then 2 marker question, that is a short answer having a 2 marks, and there is no long answer is there, and a 3 marker
पिक्चर इज़ देयर, यानी कि डायग्राम इज़ देयर. So you have to prepare it like this. So this is all about the lesson. Thank you.